Good morning, all of you. Today we move ahead with a new topic, and that is related to poverty alleviation program. That is how to remove poverty. So various policies and programs had been carried out by our government in order to remove poverty and to make poverty alleviation solution successful. City as well as village people, that is urban as well as rural people who are living below poverty line, should get direct monetary benefit from various welfare schemes. So government ने PAP that is poverty alleviation program सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे जो गरीब और लोग थे, दैट इज़ वी कॉल देम पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बोथ इन सिटीज़ एंड विलेजेस, गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया कि थ्रू वेरियस स्कीम्स उनको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए. देयर लाइफस्टाइल शुड बिकम बेटर डे बाय डे, दैट इज़ एटलीस्ट दे शुड रेज अबाउ द पॉवर्टी लाइन, सो फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर देयर डेवलपमेंट. Now there may be change in the name of these programs, but the basic goal or objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty. Next, यहाँ पे कॉमा होगा. To improve agricultural field, rural upliftment, food security, that is ration shop that we saw earlier, provide education to their children, develop the skill of the children through training, so that the economic, that is the monetary or financial condition may improve, leading social security, and may bring them, not bought them, and may bring them above the poverty line. So once again, कुछ ज़्यादा ही लंबा सेंटेंस डाला हुआ है. So let's make it easy कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए अंडर PAP in order to remove poverty, in order to give a better life to the people living below poverty line, and this was to be done by providing employment to them, by improving the agricultural field, by providing education to the children of the people living below poverty line, by developing their skill through training, and improve their lifestyle. इकोनॉमिक कंडीशन बेटर बनानी थी. तो ये सब करके जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो नेचुरली धीरे 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 इनकम बढ़ेगी. एंड थ्रू दिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स द मेन गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग दिस पीपल अबाउ पॉवर्टी लाइन. क्लियर? Present central and state government have implemented many welfare program, right? And it has tried to improve the living standard of the people living in cities, that is the poor people living in cities. उनकी लाइफस्टाइल बेटर बनाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, दोनों गवर्नमेंट ने, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. एंड बाय इम्प्रूविंग द जोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज विद द रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, and with this reduction in unemployment, no doubt poverty by itself will reduce. तो मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी तो काफ़ी बहुत सारे हैं. जैसे सबसे बड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि लोग स्किल नहीं है या एजुकेटेड नहीं है. वंस अगेन, व्हाई नॉट ऑल दिस थिंग? बिकॉज दे आर पुअर. तो दिस आर बोथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन से आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, राइट? जैसे पॉवर्टी क्यों है? ड्यू टू नो जॉब. एंड वाई नो जॉब? क्योंकि पढ़ाई नहीं की है. और क्यों पढ़ाई नहीं की है या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली है? लॉट मैनी रीजन्स. क्यों इलिटरेट है, क्यों इग्नोरेंट है? बिकॉज दे डोंट हैव मनी. तो बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन हैं फॉर बोथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो लेट्स सी what policies and programs were carried out. Very interesting, and this will be for your detailed answer. Now PAP, that is poverty alleviation program, or you can call it poverty alleviation scheme. You can divide it into 5 parts, 5 sections. One is wage based employment program. मतलब कि wage based मतलब जहाँ पे सैलरी दी जाएगी by the government to these people who are given work and those who are living below poverty line. तो once again, wage based employment program मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स लोगों को काम सिखाया जाता है यहाँ पे
not you and me, but to those people who are living below poverty line. उनको पहले तो ट्रेनिंग मिलेगी या कुछ ना कुछ तो उनके लायक काम दिया जाएगा. गवर्नमेंट कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, न्यू रेलवे लाइंस, फ्लाईओवर ब्रिजेस. तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट गवर्नमेंट करेगी लाइक मेट्रो ट्रेन. फिर बीच में लाइक फ्यू इयर्स बैक BRTS प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. तो बहुत लाखों लोगों को इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम मिलता रहता है. अब जैसे लोगों को ये काम मिला मतलब कि जो पहले अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड होने लगे. सैलरी धीरे 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 बढ़ रही है. एज दे आर बिकमिंग मोर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो और ज़्यादा काम मिलेगा उनको, परफेक्शन आएगा उनके काम में, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी उनके लिए. तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ उनको काम सिखाएगी और एक रास्ता बता देगी दैट यू विल गो एंड यू कैन गेट वर्क, राइट. फिर उनको शायद गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ही काम मिल जाए जहाँ पे उनको सैलरी मिलेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड वेज बेस्ड. वेज मतलब सैलरी उनकी डेली या मंथली, डिपेंड्स. सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भाई, पहले वाले में तो मैंने तुम्हें कुछ ट्रेनिंग भी दी या बिना ट्रेनिंग के, खड्डा खोदने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, डैम कंस्ट्रक्शन के साइट पे काम करने के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए एजुकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली काम दे देती है और सैलरी देगी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है और फिर उनको सपोर्ट करेगी विथ सम टूल बॉक्स या लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, ऑल सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट. और फिर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. दैट इज दे स्टार्ट द वर्क फ्रॉम देयर ओन हाउस, लाइक टीवी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, लेटेस्ट टू व्हीलर रिपेयरिंग. नहीं कि बजाज का स्कूटर रिपेयर करना, वो गवर्नमेंट उसकी ट्रेनिंग उनके लोग नहीं देते. लेटेस्ट आज जो मार्केट में जिसकी मांग है, डिमांड है, उसी चीज़ की ट्रेनिंग उनको मिलेगी, राइट. एंड नॉट मेनी थिंग्स दिस पीपल आर ट्रेन्ड अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज. और फिर वो खुद जैसे धीरे 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 कितने उत्साही है, इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ हार्ड वर्किंग दे आर. इट ऑल विल डिपेंड ऑन दैट पर्सन हु इज़ बीइंग ट्रेन्ड. फिर जब वो खुद का काम स्टार्ट करेगा तो पहले खुद अकेला सब कुछ काम करेगा, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है तो वो एक आदमी को एम्प्लॉय करेगा, फिर 2 को करेगा, धीरे धीरे धीरे. नाउ ही मूव्स आउट फ्रॉम हिज हाउस, ही बाइज स्मॉल शॉप और ही विल बाय इट ऑन रेंट. फिर धीरे 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 खुद की बड़ी शॉप खरीद लेगा, एक बड़ा सा वर्कशॉप डाल देगा, बहुत सारी मशीनें होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे उसके अंदर काम करने लायक. Are you getting it? This is the motto of the government. Third है programs related to food security like PDS, Public Distribution System. Simple words में ration shop, ration card, right? फिर है programs of eliminating the poverty in cities. Presently many such series of programs, मतलब many programs are implemented in this 5 section. But we will be making compiled and omnibus discussion of main programs out of them as follows. अब ये 5 के अंदर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन यहाँ पे किया क्या गया है कि 5 को एक बना दिया कंपाइल्ड फॉर्म में. मतलब एक स्मॉल फॉर्मेट बना दी है उसकी, जो बहुत ही ईजीली हमें समझ आ जाएगी. हमें मतलब तुम्हें तो लर्न करने में भी इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लर्न करने की तो सेकेंड स्टेज है. इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मग अप ऑल्सो, राइट. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. आई वुड ऑलवेज टेल यू कि ये सारे जो हेडिंग्स हैं जो तुम्हारे बुक में पिंक कलर में हैं, वो सारे लर्न बाय हार्ट कर लो, उसका मतलब समझ लो, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट. So first, प्रधानमंत्री PMs, कृषि सिंचाई योजना. सिंचाई मतलब what is that? Irrigation, right? So let's see. इसके लिए तो नेचुरली इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए तो डैम कंस्ट्रक्ट करने होंगे. अब यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे, राइट. सो अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान
देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, तभी जाके लोगों को काम मिलेगा। सेक्टर्स रिलेटेड टू इट को भी हमें डेवलप करना है। मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन से दूसरे सेक्टर्स है, तो कैटल रेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फ्रूट जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, कनेक्टेड है आई वुड से। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाना है, तब जाके कहीं पे लोगों को काम मिलेगा। इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी कैरिड आउट टू सेव वाटर, along with construction of small, big, medium sized check dams to fight water problem। मतलब कि छोटे बड़े तो बनाएंगे ही, चेक डैम्स गवर्नमेंट के इस स्कीम के अंडर स्मॉल, बिग, मीडियम साइज चेक डैम्स शुड बी क्रिएटेड, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी का जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट हम कॉम्बैट कर सकेंगे, मतलब फाइट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। तो ये सारे जब चेक डैम्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एवरी फील्ड विल गेट वाटर, वाटर का प्रॉब्लम का बड़ा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। सच टाइप्स ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट फार्मर्स आर सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर। एंड बहुत सारे डेंजर्स हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वो सारे प्रॉब्लम्स के बाहर आ जाएंगे फार्मर्स। वो जो अब तक बहुत सारा कर्ज लेते थे वो बंद हो जाएगा। दे विल बिकम डेट फ्री, दे विल कम आउट ऑफ दिस पॉइजनस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एंड ये सब कब होगा, when government will start providing them employment and provide them salary, that is monthly or daily income या wages। clear? तो once again प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या होगा, सिंचाई, वाटर रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लैंड के हर एक पार्ट को डेवलप करेगी, दूर दूर गांव तक लोगों को पानी पहुंचाएगी थ्रू इरिगेशन सिस्टम। छोटे बड़े मीडियम चेक डैम्स बनेंगे टू फाइट अगेंस्ट द वाटर प्रॉब्लम, सो दैट ईच एंड एवरी फील्ड गेट्स वाटर इन आ कंट्री। फार्मर्स जब ये सारे स्टेप जब गवर्नमेंट लेगी तो फार्मर्स अपने जो प्रॉब्लम्स के चंगुल में फंसे हुए थे, दे वर कॉट इन द नेट ऑफ दिस डेट एंड ऑल, राइट, तो उससे बाहर आ जाएंगे। एक जो विशियस साइकिल है, राइट, अ पॉइजनस साइकिल और सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसके बाहर आ जाएंगे। और ये सब कब होगा, जब ये सारे प्रोजेक्ट्स थ्रू, मतलब प्रोजेक्ट बनाने में भी लोगों को काम मिलेगा। तो एक तो ये काम मिला। सेकंड, इसी प्रोजेक्ट के बाद गांव में पानी पहुंचेगा हर एक एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अदर सेक्टर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्मर्स आर टू बी हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मतलब फार्मर्स जब तकलीफ में आते हैं बाय नेचुरल कैलामिटी, तो ये कौन सी होती है? वी वुड नॉट से कि राइट्स तो मैन मेड है, बॉम्ब ब्लास्ट मैन मेड, मैन क्रिएटेड आई वुड से, बट नेचुरल कैलामिटीज जो है लाइक एक्सट्रीम रेनफॉल जिसकी वजह से फ्लड आ गया, तो जो एक अच्छी ग्रोथ हो रही थी वो वॉश ऑफ हो गई, इट डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स ऑफ द फार्मर, तो वो प्रॉब्लम उसे फेस करना रहेगा। अच्छा, बारिश हुई ही नहीं तो प्लांट्स ही ग्रो नहीं होंगे ठीक से, फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉट आ जाएगा, फेमाइन, तो इससे भी उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अब हर बार लोन लेना मनी लेंडर से कोई रास्ता, वो एक इजी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए अब गवर्नमेंट, और जब ज़मींदार से लोन लेते रहेंगे, पुराने ज़माने में जो वो करते थे वो 10-15 साल पहले तक भी वो कंटिन्यू ही था हमारी कंट्री में, तो वी कैन से कि यहाँ पे लोग डेट के चंगुल में फंस जाते हैं ज़मींदार के यहाँ, एंड जब तक जीते हैं उस डेट के बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लोन ली थी फॉर एग्जांपल से 5,000, लेकिन इतने सालों में कर्ज बढ़ते 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 लाख का हो गया। मतलब जो मेन अमाउंट लिया था वो तो 5,000 ही था, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ते 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 हो गया हज़ारों रुपए, जो वो
अपनी लाइफ में या उनके बच्चे भी अपनी लाइफ में रीपे नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर नेगेटिव साइकिल से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद सम सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान फॉर द फार्मर्स। ये नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट उनको मनी से सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन, दैट इज एक मॉनेटरी सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने अगर उनको कॉटन बाय करना है, या अगर उनके क्रॉप्स में डैमेज आ गया तो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उनको। कृषि मुक्त कृषि भाव पंच, पंच मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम कहते हैं ना पंचायत, गांव में 5 लोग, पहले के ज़माने में 5 मतलब थोड़े बड़े समझदार लोग इकट्ठा होते थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज पीपल, ताकि वो गांव अच्छे से डेवलप हो, लोग अच्छे से रहें, पीसफुली रहें। यहाँ पे क्षति मुक्त मतलब डेट फ्री कृषि भाव पंच हैज़ बीन सेटअप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। तो अब ये डेट फ्री फार्मर की लाइफ, मतलब एक डेट फ्री लाइफ देने के लिए फार्मर के लिए, एक बेहतरीन लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मैनी सच ऑर्गेनाइजेशन वे द प्राइजेस ऑफ द थिंग्स विल नॉट क्रॉस द लिमिट। द फार्मर्स कुछ बाय करने जाएंगे मार्केट में तो एक अच्छी प्राइस पे खरीद पाएंगे। जब वो अपना सामान खरीदने जाएंगे, फूड ग्रेन्स एंड ऑल इन द मार्केट, दैट टाइम ऑल्सो दे विल गेट गुड प्राइस। तो मेन मोटो ओवर हियर ऑफ ऑल दिस स्कीम इज टू टेक केयर ऑफ द फार्मर्स, to see that they don't fall in the trap of the debt and they live a healthy life and their children also move ahead. Then there is National Drinking Water Program. Program like providing water to every field, वो तो हमने अभी तक देख लिया। Improving existing canal network, जो canal network बहुत साल पहले बनी थी उसकी शक्ल बदलनी है, मतलब उसकी जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, या उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एक उसको डेवलप करना है, थोड़ा रिनोवेट करना है, राइट, पुरानी चीज़ को। स्टॉप सॉइल इरोजन, देखना है कि भाई ज़मीन इरोड ना हो जाए हमारी जो अब तक फर्टाइल है। न्यू बोरवेल दैट इज़ ट्यूब वेल्स फॉर आदिवासीज, प्रिवेंशन ऑफ salinity have been implemented. Other than this program of digging ponds, watershed development तुम देखोगे चैप्टर नंबर 11 में, बट एट प्रेजेंट आई वुड लाइक टू से watershed development मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे like when the rivers are flowing continuously from a bit of hilly region, तो कहीं स्लोप ऐसा रहता है कई जगह पे कि वो पानी का बहाव हमेशा सीधा नहीं जाएगा एक जगह पे। इन बिटवीन दैट रिवर बाइफोकेट्स, राइट, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मे बी द वन मेन फ्लो विथ मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव्स अहेड, बट एक छोटा सा एक हल्का सा फ्लो वाला डाइवर्ट हो जाएगा एंड इट गेट्स कलेक्टेड एट दैट प्लेस, क्योंकि वो भी एक रास्ता बन चुका है उस रिवर फ्लो के लिए। नाउ दैट वाटर इज अनयूज्ड इतने सालों से। इस वाटरशेड डेवलपमेंट की सिस्टम में जो पानी अब तक यूज़ नहीं होता था, वेस्ट जाता था, उसे अब गवर्नमेंट यूज़ करवाती है फॉर ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फॉर द पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। उनके बेटरमेंट, लाइफ बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ये वाटरशेड डेवलपमेंट क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, एफॉरेस्टेशन दैट इज ग्रोइंग मोर ट्रीज, इसमें से तुम 3-4 लर्न कर सकते हो, नीड नॉट लर्न ऑल। Construction lining of canal, planting trees, shrubs, renovation, revitalization of check dams, etc. have been started so that people get employment in villages and families come out of this poisonous cycle of poverty. अब I told in the previous lecture कि farmers के पास या farm laborers के पास काम रहता है 4-5 महीने, खुद की ज़मीन हो छोटी सी, we are talking about poor farmers या a bit of मिडिल क्लास फार्मर्स जो हम कहते हैं, जिनका एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का, तो उस पर वो खुद जो ग्रो करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग टाइप, उसकी फैमिली यूज़ कर लेती है क्योंकि इतना कम ग्रो होता है छोटी सी लैंड पे दैट दे डोंट हैव इनफ टू गो एंड सेल इन द मार्केट, राइट। तो वो गरीबी में ही रहते हैं।
या कई बार ऐसे होता है कि जो फार्म लेबरर्स हैं किसी और के फार्म पे, बड़े बड़े ज़मींदार के बड़ी बड़ी ज़मीनों पे फार्म पे जब काम करने लेबरर्स जाते हैं तो उनके लिए भी 4-5 महीने काम रहता है, 6-8 महीने काम नहीं रहता, तो वो बैठ जाते हैं घर में। अब घर में बैठने पे तो कमाई होगी नहीं क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं। इलिटरेट या सेमी लिटरेट, दे आर नॉट स्किल्ड इन एनी अदर थिंग, दे डोंट नो एनीथिंग रिलेटेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट ट्रेन्ड पीपल। तो होगा क्या कि फिर से वही चंगुल में फंस जाते हैं। जो 5-6 महीने कमाया वो पूरे साल यूज़ करना है तो वापस गरीबी में आ गए। सो पुअर बिकम्स पुअर और रिच बिकम्स रिचर। तो अब गवर्नमेंट ये नया सिस्टम ले आई है कि गांव के लोगों को पानी भी मिलेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा, फार्म के लिए भी पानी मिल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग ऑफ दैट 4-5-6 मंथ्स, बाकी के टाइम में वो जो अनएम्प्लॉयड रहते थे उस टाइम के लिए गवर्नमेंट ने एक नया काम शुरू करवाया कि गांव के लोग उसमें एक पार्ट भी बनेंगे, वो उसका एक हिस्सा भी बनेंगे उस कंस्ट्रक्शन का। विलेज भी डेवलप होगा, लोगों को काम मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। तो इट्स लाइक लॉट मैनी बेनिफिट्स विद दिस वन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में है कि एज आई टोल्ड यू, पुराने कैनल नेटवर्क को बेटर बनाना, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना, छोटे बड़े डैम कंस्ट्रक्ट करवाना, सॉइल इरोजन स्टॉप करवाना थ्रू वेरियस मेथड्स, ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करके आदिवासियों के लिए पानी प्रोवाइड करना, पॉन्ड डिग करवाना, ग्रो मोर ट्रीज करवाना, देन टैंक कंस्ट्रक्ट करना है, लॉट मैनी थिंग्स, पॉन्ड को क्लीन करवाना है एंड सो मैनी प्रोग्राम्स गांव और गांव के आसपास गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाए हर एक गांव में, ताकि उस गांव के लोगों को फार्मिंग करने के बाद जो अनएम्प्लॉयड टाइम पीरियड था उनका, लंबा अनएम्प्लॉयड टाइम पीरियड, वहाँ पे उनको काम मिल जाएगा और पूरे साल या वो 6-8 महीने जो वो फ्री रहते थे वो बंद हो जाता है। यहाँ पे उनको काम भी मिलता है, गांव भी डेवलप हो रहा है, फैमिलीज भी डेवलप हो रही है। फिर उसके साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है गाँव में, और गाँव के पास के एक स्लाइटली डेवलप्ड टाउन रीजन में आने जाने का खर्चा भी एसटी बस का गवर्नमेंट दे देती है। सो इनिशियली अ बूस्टअप इज़ प्रोवाइडेड टू दिस फैमिलीज़ कि भाई भैया आ जाओ, हम ही आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी और लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी एंड लॉट मेनी एडवांटेजेस आर गिवन टू देम, ताकि वो खुद डेवलप हो, उनके बच्चे डेवलप हो, गांव डेवलप हो। गांव में ही वो सारी चीज़ें वो पढ़े लिखे बच्चे ले आए अपने गांव में, ताकि वहाँ के लोगों को सिटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। State government has provided loan, that is finance at low rate of interest from bank for kharif crops, then comma आएगा, cattle rearing, storing fertilizers and also sorry यहाँ पे भी गलत है, government has taken solid steps, not solid, big steps, great steps in irrigation scheme of central government। तो कहीं कहीं पे थोड़ा टूटा फूटा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, comma, full stop and what not. So once again you can frame this on your own. Listen carefully. State government provides loan at low rate of interest from bank to these farmers to develop their life. Second, for kharif crops also government provides loan at low rate of interest. Then cattle rearing के लिए भी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है, फर्टिलाइजर स्टोर करवा रही है। Great steps are taken related to irrigation projects complete. These all things are done not only by state government but also by central government. Full stop. Gujarat government has undertaken program for poverty removal. Since last 10 years, government has been organizing poverty welfare program and poverty welfare fair. मतलब मेले लगता है, मेले मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वो चक्कर जो घूमता है, लाइक मेरी गो राउंड एंड जायंट व्हील एंड लॉट मैनी थिंग्स, और गेम्स खेलना और पकौड़ी खाना एंड माय गॉड मुंह में पानी आ गया, राइट, पानी पूरी खाना एंड वड़ा पाव खाना एंड GSM मैगी एंड ऑल। माय गॉड बोलेंगे मैम बोलो मत, मुंह में तो बहुत सारा पानी आ रहा है आज तो सुबह सुबह, और अगर रात को देख रहे हो तो रात और शाम को देख रहे हो तो शाम को, राइट। So once again, this fair means it's like a big
वी कॉल इट एग्जीबिशन, वी कैन कॉल इट. जैसे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बहुत टाइम लगता है अहमदाबाद में, बहुत सारे अलग अलग जगह पे पहले हम जाया करते थे. सैड थिंग कि अभी नहीं जाते, बट हैप्पी थिंग इज़ दैट very near future, very near future, maybe in 1 year. अब मेरे बच्चे उस और बैठ के हंस रहे हैं. देखो तो मैम क्या डायलॉग मार रही है कि very near future 1 year. Yes dear, ऑलरेडी 6 महीने हो जाएंगे अभी थोड़े ही दिनों में कि हम घर में बैठे हैं. एंड आई थिंक सो वी ऑल आर यूज टू दिस लाइफ स्टाइल नाउ. अब जिस दिन घर से बाहर निकलना होगा उस दिन कुछ नया लगेगा. इनिशियली लाइक सिटिंग इन द हाउस एंड मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अदर, तो पैर इतने हमारे मूव नहीं होते थे. बट द मोमेंट वी स्टार्टेड मूविंग आउट अ बिट, तो एक अलग फीलिंग आने लगी थी जब लंबा चले रास्ते पे. जिस दिन साइकिल चलाई हमने, या जिस दिन हमने 2 व्हीलर चलाया, इट वॉज अ बिट समथिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड लर्निंग एक नई चीज़ अपनी लाइफ में, राइट. वैसे जैसे हम 3 महीने के बाद जैसे कुछ नया सीख रहे हैं, एक नई अच्छी फीलिंग आ रही थी. सो सेम मे बी आफ्टर ईयर व्हेन द लाइफ विल बिकम वेरी नॉर्मल एज बिफोर, लाइफ विदाउट मास्क, दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे आई वुड से, लाइफ विदाउट मास्क. सो एग्जीबिशन तब वापस शुरू हो जाएंगे और कभी जाते रहो, देखते रहो व्हाट ऑल थिंग्स यू मे नॉट बाय. लेट योर मदर डू दैट वर्क बिकॉज शी लव शॉपिंग. पापा loves to pay for it, but तुम accompany करोगे. just keep a watch on each and every stall, each and everything that they are selling over there and just fix कर लो अपने दिमाग में. these are some small things that helps us in future. पता नहीं कि तुम कौन से फील्ड में जाओगे आगे पढ़ाई करने, बट ये छोटी चीज़ें जो हम सोसाइटी में देखते हैं कहीं पे, when you move out on the road side, keep on seeing various hoardings and all. ध्यान रखो कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं. these all things are very important in life. as I told you very initially in the beginning when we started in April that English पढ़ाई करते हैं लेकिन इंग्लिश समझते नहीं. अदरवाइज आई वुड नेवर वुड, एक नीड अराइज होती नहीं मेरे लिए भी टू टीच यू समवेयर इन बिटवीन इन हिंदी. Because initially 1 or 2 messages came to me that ma'am don't give full lecture in English, it becomes a bit difficult. शायद इतना तो समझ में आ ही गया है. But being in English medium, of course, I'm not going to teach you everything in Hindi, but I always pity my some children, most of you, कि कहीं पे थोड़ी इंग्लिश कभी वीक हो जाती है तो दे, या कभी यहाँ पे एक बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं और अगर उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट ना करूँ, सॉरी गुजराती तुम सुनोगे तो तुम फेल ही हो जाओगे गुजराती में. सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई टॉक विथ यू और स्पीक और टीच यू इन गुजराती. वेरी लो लेवल, बहुत ही रॉटन गुजराती है हमारी. बट येस, मराठी यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ आई टीच यू इन मराठी. तो देन आई हैड डिसाइडेड कि चलो भाई इंग्लिश में तो पढ़ाना ही है, बट समवट इन बिटवीन आई विल बी एडिंग इन बिटवीन हिंदी व्हेन सम डिफिकल्ट वर्ड्स विल टेक एंट्री. सो दिस फेयर, I need not have told you or I need not have explained to you what is the meaning of fair. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी था फेयर का मतलब समझाना. मेला नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे द वर्ड एग्जीबिशन, जहाँ पे ये फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट एग्जीबिशन रखवाती है where they come to know about various schemes that are being undertaken by the government for them, various things that are provided to them at low cost और बैंक लोन दैट आर प्रोवाइडेड टू देम एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स. तो ये एग्जीबिशन में काफ़ी नॉलेज मिलता है उनको, और ये उनको फार्मर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया जाता है, पॉवर्टी के बाहर उनको लेके आना है. सो फॉर दैट दिस एग्जीबिशंस आर बीइंग कैरिड आउट, जहाँ पे उनको काफ़ी नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, राइट. इनाम स्कीम. Under this program, agricultural market has been set up for the farmers, in which farmers may get their product listed. जैसे ऑनलाइन अगर सपोज मैं कुछ सेल कर रही हूँ तो मुझे अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करवाना होगा, मतलब माई प्रोडक्ट्स आर बीइंग लिस्टेड देयर, राइट. अब बहुत सारे लोगों को वंस इट कम्स ऑनलाइन, दैट डजंट मीन दैट इट इज़ ओनली फॉर अहमदाबाद
or for Gujarat or for India. It could be worldwide, right? तो चलो हम पहले उन्हें स्मॉल स्केल इंडिया ही ले लेंगे. तो अगर मेरा प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर दिया है तो नाउ ऑल ओवर इंडिया पीपल विल कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट दैट आई हैव पुट इन द मार्केट. अब वही प्रोडक्ट धीरे 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 लोगों तक पहुंचने लगेगा एंड आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द प्राइस. कई बार उसमें ऑक्शंस भी होंगे. ऑक्शन मतलब द वन हु बिडिंग कहते हैं उसको, बिडिंग, ऑनलाइन बिडिंग मतलब द वन हु गिव्स मी द बेस्ट प्राइस आई विल सेल माई प्रोडक्ट टू देम. ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कई बार हिंदी मूवीज़ में बताते हैं. येस, आई ऑलवेज वुड लव टू गिव एग्जाम्पल ओनली ऑफ हिंदी मूवीज़ and your family and my family, because that is the thing with what we are very close to, that we have experienced. मैं कभी रास्ते पे जाते हुए ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल नहीं दे सकती रिलेटेड टू इमोशंस, बिकॉज आई डोंट नो थ्रू विच इमोशंस दे आर पासिंग, राइट. फॉर एग्जाम्पल, like it used to happen that in Bombay, my parents and all, they used to have, मतलब I was also a part of that family naturally and I am at present, but था तो उन्हीं का, not mine. तो my parents, they had their own bungalow in Bombay, like it was main road और उस पे 3-storied bungalow, right. Now all those people who used to pass from there, तो कई लोग जैसे some of them were like आसपास के बिल्डिंग में रहते हुए, my friends and all, they always used to say how lucky you are to stay in this big bungalow and all. And हाँ, that time I was so like we were so young and all, तो कुछ ऐसी समझ में नहीं आती थी. I just used to give a smile, okay. But that time पढ़ाई करते थे, कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, whatever. फिर धीरे 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 all these things as we start moving ahead in our life, and I used to listen to some dialogues of my mother. She also used to tell me कि कई लोग आके हमें कहते हैं कि वाह आप तो कितने लकी हो, देखो तो झूले पे झूलते हो, मेन रोड दिखाई देता है, इतने सारे बेडरूम आपके, एंड देयर वाज अ ह्यूज गार्डन ऑल्सो बंगलो के सराउंडिंग में एंड मैनी सर्वेंट क्वार्टर्स एंड ऑल. तो अब तो उस जगह पे आ चुका है 20-storied बिल्डिंग, हाई राइज. बट दिस वॉज वॉट वी हैड टिल 5 years और अबाउट आई थिंक सो 10 years बैक तक वो था वो बंगलो वहाँ पे. तो दैट टाइम माई मदर ऑल्सो यूज टू से कि इनको पता नहीं चलता कि सारे बड़े बंगले में रहने वाले सुखी नहीं होते. आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. But then slowly I understood as I started living my life individually, and then coming to Ahmedabad and fighting, had faced many, I would say for me, they were not tough days. They were blessed days because there were lots of hard working and challenges. बहुत challenges face किए as I told you for 14-15 years. And कभी पैसे होना, कभी पैसे नहीं होना, कभी खाना मिला, कभी खाना ठीक से नहीं मिला. सो दिस वो 15 साल चैलेंजेस के फेस किए अहमदाबाद में. दैट टाइम आई अंडरस्टूड एंड वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल हाउस, फ्रॉम दैट बिग बंगलो टू अ स्मॉल हाउस. बट आई यूज्ड टू से येस आई लव दिस स्मॉल हाउस. रीज़न कि यू फील इन दैट कॉम्पैक्ट हाउस वननेस, राइट. और हमने देखा कि कहीं पे वो बड़े से बंगलों में वननेस नहीं थी. वी हार्डली दिन में एक बार ही शायद एक दूसरे को मिलते थे. लाइक वंस इन अ डे मे बी आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज आई यूज्ड टू मीट माई मदर फॉर दैट 5-10 minutes एट द लंच टाइम. फिर वापस ट्यूशन पे चले जाना क्लासेस में, फिर रात को आना, फिर पढ़ाई करो, फिर रात को 1-2 बजे सो जाओ, फिर वापस सुबह निकल पड़ो कॉलेज के लिए एंड ट्यूशन्स एंड ऑल. तो हार्डली आई यूज्ड टू मीट माई सिबलिंग्स एंड लाइक इट वॉज लाइक इक्वल टू हॉस्टल में रहना. एक कॉर्नर में बंगलो के उसकी रूम है, दूसरे कॉर्नर में मेरी है, तीसरे कॉर्नर में किसी और बहन की है या भाई की. सो दिस वॉज वॉट द लाइफ स्टाइल. सो आई ऑलवेज स्टार्टेड देन बिलीविंग, एंड इवन टुडे आई बिलीव अ लॉट, मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस. बट येस, इतना पैसा चाहिए कि हम अपनी लाइफ अच्छे से हेल्दी वे जी सकें. बट मोर एंड मोर ऑफ मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस. दैट इज़ वॉट इज़ माई बिलीव, राइट. हाँ, लेकिन मोर एंड मोर ऑफ वर्क
इज़ हैप्पीनेस फॉर मी. दैट इज़ वंस अगेन माई बिलीफ. वो मैं तुम्हारे सर पे थोप नहीं सकती मेरी सोच. तो जो लोग जो आज भी कहते कि ओ वाओ इतना बड़ा बंगलो किसी और के लिए, जैसे यू माइट बी सीइंग सम नाइस बंगलो एंड यू आर स्टेइंग इन से अ फ्लैट, माय गॉड काश मेरा भी ऐसा बंगलो हो. तो अच्छा है, ड्रीम रखना अच्छा है, बट हैप्पीनेस इज नॉट देयर. हैप्पीनेस इज इन डूइंग हार्ड वर्क. हैप्पीनेस इज इन अचीविंग समथिंग ग्रेट इन लाइफ. जैसे एक बड़ा नाम कमाओ लाइफ में, राइट. हैप्पीनेस इज नॉट वार्डरोब भर भर के तुम्हारे कपड़े, या हैप्पीनेस इज नॉट स्कोरिंग ओनली ऑलवेज 90, 95, 98 की रेस में लगे रहो. इवन टुडे आई से हर एक चैप्टर को हर एक साल जब तक पढ़ाई करो और आगे 10-12 साल पढ़ाई करो, तब तक हर एक चैप्टर को समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, वेदर इट इज साइंस, मैथ्स, ग्रामर, इंग्लिश, लिटरेचर और वेदर इट इज़ सोशल स्टडीज़ में मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स. तो सबके कंसेप्ट क्लियर करो. इस कंपटीशन में अगर लगे रहोगे 90 अप 90 अप 90 अप, तो कहीं पे पीछे छूट जाओगे. क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है? फियर. दिमाग में क्या चल रहा है? कंपटीशन. दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे साथ जो दूसरे बच्चे हैं कहीं तुमसे आगे ना निकल जाए, राइट. वो प्रेशर में अब दिमाग क्या भर गया? प्रेशर से भर चुका है. तो दिमाग में तो जगह बाकी नहीं रही पढ़ाई के लिए, राइट. अच्छे थॉट्स के लिए जगह बची नहीं दिमाग में. अब दिमाग हमारा बेचारा छोटा सा नाजुक सा दिमाग, इतना सा दिमाग छोटा, अब वो तो बेचारा इतना हैवी हो गया विद टेंशन एंड कंपटीशन एंड जेलसी एंड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड हेट्रेड. देखो तो कुछ नहीं अचीव करोगे लाइफ में. ये सब कुछ दिमाग से बाहर निकाल दो. लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड स्टडी हैप्पीली और मन से पढ़ाई करो, ठीक है. अपने आप रिजल्ट मिलेगा, बट डेली काम करो, राइट. सो डोंट एंटर इनटू कंपटीशन. आई वुड से डोंट एंटर. हाँ, compete yes 100% compete, बट विथ whom? विथ योर ओन सेल्फ. अगर मैं बाहर नज़र घुमाऊंगी, हाय हाय उस ट्यूशन वाले के यहाँ तो कितनी ट्यूशन है, उनके तो क्या क्लास चल रहे हैं. I would never focus on my work. What I want is लास्ट ईयर से इस साल क्या ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल दिए, लास्ट ईयर से इस साल मैंने ज़्यादा क्या करवाया. तो येस, दिस ईयर आई एम हैप्पी कि घर से जो पढ़ाई करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी एडिशन हुई है इन, हाँ, थोड़ी चैप्टर्स में कहीं पे मैं थोड़ी स्लाइट स्लो हुई. नॉट स्लो, आई वुड से एज सच वी आर ऑन ट्रैक, बट समवेयर आई फील कि कहीं पे ग्रामर के लेक्चर्स काफ़ी डिटेल में चले गए, बट दैट इज़ व्हाट आई एन्जॉय. तो इसलिए मैं डिटेल में करवाती रहती हूँ. हो सके तो थोड़े टाइम के लिए मैं 2-2 लेक्चर भेजती रहूँगी, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर कोर्स बाय December फर्स्ट वीक. दैट इज़ ऑलवेज द टारगेट. एंड ताकि फिर से जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर पाएँ. सो वंस अगेन काफ़ी सारे यहाँ पे तो कंपटीशन की बात आ गई, ऑनलाइन बिडिंग एंड ऑल. तो ऑनलाइन बिडिंग हिंदी मूवीज़ में होता है ना, जैसे किसी ने किसी चीज़ के लिए 2000 की बोली, तो किसी और आदमी ने वहाँ पे इकट्ठा हुए ग्रुप में से किसी ने कहा 4000, किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा 10,000. फिर सब चुप हो गए. तो क्या होगा? 10,001, 10,002, 10,003. दिस इज कॉल्ड बिडिंग. अब 10,003 के पहले कोई बोल गया 11,000, तो उसके पास चला जाएगा. फिर होगा 11,001, 11,002, 11,003. अब ये 11,003 जैसे बोले और किसी ने हैंड रेस करके ऊंची अमाउंट नहीं बताई, तो सारा प्रोडक्ट हो जाएगा 11,003 बोलने वाले का, राइट. मतलब 11,000 बोलने वाले का. दिस इज़ हाउ फार्मर्स के प्रोडक्ट की बिडिंग होती है ऑनलाइन, ताकि उनको बेस्ट प्राइस मिले. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर्स फ्रॉम लॉस फेस बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स. मीडिएटर्स मतलब मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था अमूल डेयरी का या जस्ट मिल्क प्रोडक्ट का, कि गांव के जो फार्मर्स हैं तो बहुत टाइम पहले ये फार्मर्स, उनके पास 1-2 गाय भैंसें तो रहती है, राइट. अब वो उनका मेन काम था एग्रीकल्चर, तो वो चीज़ें जाके गांव या पास के गांव में बेच आना, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स एंड ऑल.
अब जब उनकी गाय भैंस जो मिल्क प्रोवाइड करती वो खुद यूज़ करते, लेकिन फिर भी बच जाता, तो बाजू वाले के यहाँ शादी आ गई तो चलो 1 हफ्ते तक उनको देते गए वो एक्स्ट्रा मिल्क। अब बाजू वाले ने कहा भैया ये तो बहुत गलत है, कुछ तो पैसे ले लो। उसने कहा ठीक है, लीटर के 1 रुपया दे देना, तुमसे क्या पैसे कमाना, वी आर लाइक वन फैमिली स्टेइंग नियर बाय। अब एक आदमी आया सिटी से, उसने कहा मैं आपको 5 रुपये दूंगा पर लीटर। अब ये तो फार्मर सारे खुश हो गए, वाह हम तो बाजू वाले को 1 रुपये लीटर देते थे, यहाँ पे तो 5 मिलने वाले। दे दिया उसको, 5 रुपये में खरीदा, मीडिएटर ने बेचा उसे 20 रुपये में। तो मीडिएटर का खर्चा निकाल लो, चलो और 2-3 रुपये, फिर भी वो 10 से 12 रुपये पर लीटर कमाने लगा। ऐसे हज़ारों लीटर रोज़ आके ले जाता। This mediators revolted a lot at the time of Amul Dairy के टाइम पे, right? That was the first ever great challenging thing that came in our country. समझ में आ रहा है? तो मीडिएटर की जगह काफ़ी सारी डेयरीज ने ले ली है, ताकि, और अमूल डेयरी किसके लिए काम कर रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। बहुत सारे अच्छे काम करते हैं अमूल डेयरी वाले, बहुत बड़े बड़े उनके हेल्पिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं फॉर दी लोग इकोनॉमिकली वीक पीपल। जैसे अमूल जहाँ पे भी अमूल का पार्लर होगा उसके पीछे देखना एक गार्डन भी है, सो दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। फिर उनके नाम से स्कूल भी चलती है गरीबों के लिए, एंड मैनी प्रोजेक्ट्स दे हैंडल, सो दे आर डूइंग वेरी नाइस वर्क, प्लस दे डोंट हैव एनी मीडिएटर। तुम सुबह जाओ, रात को जाओ, दोपहर में जाओ या शाम को जाओ, पूरे टाइम जब भी अमूल पार्लर खुला होगा तो दूध या दही या किसी का भी प्राइस सेम होगा। बट द मोमेंट यू गो टू सम अदर लाइक सिंपल सी डेयरी जो गोल स्पॉट एंड समोसा एंड खाखरा सब कुछ बेचेगी, ऐसी डेयरी में, प्राइवेट डेयरी में जाएंगे और कुछ खरीदेंगे, जैसे 1 लीटर मिल्क, तो उनके प्राइस तो सुबह को अलग होगा, शाम को कुछ अलग होगा, बिकॉज दैट इज़ ए प्राइवेट। अमूल डेयरी इज कोऑपरेटिव, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन सिटीजन, राइट। सो ये मीडिएटर यहाँ से निकल जाते हैं, राइट, एंड यहाँ पे होते नहीं। तो गवर्नमेंट का मोटो है कि फार्मर्स को बचाना फ्रॉम दिस मीडिएटर, ब्रोकर्स दैट इज एजेंट्स, एंड दे गेट मोर प्राइस, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा प्राइस मिले, दे अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन। द सच स्टेप्स शुड बी टेकन विद डेवलप एग्रीकल्चर। तो ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है जिससे कि एग्रीकल्चर डेवलप हो, मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो एग्रीकल्चर में और मैक्सिमम इनकम भी हो फार्मर्स की। सो द फार्मर्स रिमेन्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बिजनेस। और इतना कुछ डेवलपमेंट दे दो इन फार्मर्स को कि वो अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाए डेवलपमेंट में कि एग्रीकल्चरल फील्ड में तो उनकी डेवलपमेंट हो ही जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा कमाएंगे उनकी एक बूस्टअप भी मिलेगा उनको, तो धीरे 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 सारे फार्मर्स की लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो जाएगी। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ इनाम स्कीम। नाउ ग्रामोदय से भारत उदय स्कीम, दिस वी डिड जस्ट इन 1 line previously, but now 3 mark, it will be your short note। गांव का उद्धार होगा तो पूरा इंडिया का उद्धार होगा, राइट। सो थ्रू सच प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान, फार्मर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, हाउसवाइफ ओरिएंटेड, मतलब कि इनको सेंटर में रखते हुए इनके प्रॉफिट के लिए जो प्लान्स बनते हैं उसको हम कहते हैं ओरिएंटेड। अब फार्मर ओरिएंटेड में स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लान में फार्मर के रिलेटेड कुछ प्लान्स नहीं होंगे। हमें फोकस में रख के जब स्टूडेंट्स को फोकस में रख के प्लान्स बनते हैं तो हम कहते हैं स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लान, राइट। तो थ्रू सच वेरियस प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान हैव बीन मेड to prevent loss faced by the farmers due to wild animals coming and damaging their crops by providing them money to build fencing across their farm to protect their crops from this not wild animals, it's very wrong, don't write यहाँ पे क्या टाइगर और लायन और ये सब आ जाएंगे क्रॉप्स को खाने, नो, जस्ट राइट एनिमल्स। सो बाय द फार्मर्स ड्यू टू एनिमल्स। तो अब इन फार्मर्स के क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, उनकी फील्ड खराब करके चले जाते हैं एनिमल्स, तो इस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही है, ताकि वो फेंस
से कवर कर दे अपने फील्ड को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को। फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रास, फिर गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है कि ग्रास ग्रो करो उनके कैटल के लिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक ड्रॉट एंड ऑल। तो इरिगेशन फैसिलिटी, बहुत सारे पानी के अलग अलग सिस्टम, लाइक हाउ टू प्रोवाइड वाटर थ्रू वेरियस सिस्टम, ऑल दिस हेल्प इज़ गिवन। फिर उनके कैटल के लिए एक शेल्टर भी कंस्ट्रक्ट करवाती है गवर्नमेंट। फिर रेन फोरकास्टिंग, ताकि उनको वो उन तक वो मैसेज पहुँचे रेन फोरकास्टिंग का, तो अकॉर्डिंगली दे कैन मूव अहेड इन their एग्रीकल्चरल वर्क। डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजन थ्रू अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक। ड्रोन तो आजकल सबको ही पता है, राइट? तो गवर्नमेंट मिनरल रिच रीजन्स डिस्कवर करवाती है थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। प्रोविजन इज मेड, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे। They get help in the form of availability of money, that is loan at low rate of interest to buy machinery for farming, like to जैसे उनको या तो ट्रैक्टर खरीद लो बाहर से, या कभी उनको एक छोटी सी don't write produce tractor, we can say over here, if these farmers want mini tractors या small tractors for the production work in their farming, तो उसके लिए पैसे से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट हेल्प देम इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन, दैट इज ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ओवर योर। तो इसमें से 4-5 लिख के यू कैन राइट एट्सेट्रा, बट रीड हर बार जब भी टेक्स्ट बुक रीड करो तो सब रीड करना है, लिखना 2-3। फिनेंस सोसाइटी, मतलब बैंकिंग स्टार्ट करवाती है गांव के आसपास ताकि फार्मर्स के लिए इजी हो जाए लोन लेने जाना। सेटअप ऑफ न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस, मैनेजमेंट टू सी दैट फार्मर्स गेट गुड प्राइस इन द मार्केट, मेकिंग पॉन्ड्स, क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड मेकिंग पॉन्ड्स डीप बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम देम। सो ये गलत है, कॉमा निकाल देना है यहाँ पे, सिंपल लिखना क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स बस। रिमूविंग सॉइल मतलब कचरा निकालना, तो हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट उनके पास काम देती है जब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड आ जाता है। मैंने पहले बताया फार्मर्स के लिए 5-6 महीने अनएम्प्लॉयमेंट वाला रहता है, तो तब उनके लिए पॉन्ड क्लीन करवाती है, बहुत सारी सपोर्ट करवाती है ताकि उनको काम मिले, पैसे मिले उन 5-6 महीने में स्लैक पीरियड में। देन यू मे रिमूव दिस ऑल दिस थिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड, क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, मतलब पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा। फिर नए कंस्ट्रक्शन करवाती है ताकि वाटर स्टोर कर सके फॉर द ड्राई पीरियड, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टोरेज सिस्टम, resettlement of water tank, repairing of check dams, increasing water storage capacity so that farmers may get employment during time apart from farming। तो ये एक अच्छे से एक सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला सेंटेंस है। सो एज आई टोल्ड यू, डोंट राइट टू मेनी थिंग, जस्ट राइट दैट थ्रू दिस सिस्टम, ग्रामोदय से भारत उदय स्कीम में आगे के 4-5 सेंटेंस ऑल राइट। From here you need to write that government provides them bank loan at low rate of interest so that they can buy mini tractors, or they also can buy hybrid quality of seeds, and for the production of cotton, pulses, spices, government provides them all these things at low cost rate. Then government provides them training related to technology in agriculture, how it is to be used, and new testing laboratory भी गवर्नमेंट ने सेट की है ताकि इन फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिले, और पॉन्ड क्लीन कराने का काम देती है अनएम्प्लॉयड टाइम पीरियड में। फिर यही पॉन्ड और टैंक बनवाती है नए, फिर टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़वा रही है, राइट? दिस मच यू कैन राइट। At the same time, permanent property is set up in the rural area. Now, what is the meaning of permanent property? Very important. अब देखो, परमानेंट प्रॉपर्टी मतलब कि जो उन्हीं की होता है हमेशा के लिए, तो रोड कंस्ट्रक्शन, डिस्पेंसरी कंस्ट्रक्शन, मिनी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, लेक कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, टैंक कंस्ट्रक्शन, वेल कंस्ट्रक्शन, स्कूल कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे वो गांव डेवलप होगा, तो कॉलेज कंस्ट्रक्शन, इसे हम कह सकते हैं परमानेंट प्रॉपर्टी, और इसी परमानेंट प्रॉपर्टी से गांव डेवलप होता है, राइट?
तो वहाँ के लोगों को फिर सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट टाइम पीरियड में। क्लियर? उनका ही गांव इतना खुद ही इतना डेवलप कर लेंगे अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स कि दे ऑल विल मूव अबाउट द पॉवर्टी लाइन। द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू सेव फार्मर्स फ्रॉम डेट, मतलब कर्ज, बाय हेल्पिंग देम थ्रू दिस scheme. So from here we continue next time, and maybe one more lecture of SS will flow. Next time 2 लेक्चर ले लूँगी SS के. So thank you once again. इतना पहले रिवाइज करते रहो, आगे के जितने भी हुए हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. ये जो लंबे लंबे चैप्टर्स आ रहे हैं, आई कैन ओनली फोल्ड माई हैंड्स एंड रिक्वेस्ट माई डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग. और एक साथ सारे वीडियोस 2 घंटे बैठ के रिवाइज करो तो शायद अब तक 3-4 घंटे के हो, 3 घंटे के हुए हैं. स्टिल मे बी 4-5 आवर्स मोर टू गो, मिनिमम 3-4 आवर्स. तो प्लीज़ रिवाइज इट. ठीक है? Thank you so much. Take care. Thank you.